morning, sir. Welcome. Good afternoon. Good sir. afternoon. Good afternoon. Please take a seat. Are you comfortable now? Yes. Sir. Should we start Yes. Sir. in English? Yes. Sir. Okay. Introduce yourself to the board members. Yes, sir. So I have completed my 10th from Mithila Public School in the year 2014 and my 12th from Vijayendra Public in the year 2016. Then after I did my graduation from Patna Women's College in the year 2019 Mhm. with chemistry as my honors subject. Mhm. I have also done my post-graduation from University Department of Chemistry, Mhm. Patna University in the year 2022. Mhm. In addition to this, I have done a research project on the comparison of metals present in green tea and black tea. My hobby is Mehendi art, and I aspire to become a better citizen and to live my life with purpose. Okay, you want to become a better citizen, and for that, what you need to do? So for that, civil services is a way Hmm. in which I could make my life purposeful. I think so. Okay. Do you think that it is important for anybody, so to say, to join civil service to upgrade him or her as a person? No, sir, it is not important. It is one of the ways. It is one of the ways. Yes, sir. And secondly, is it important to have any purpose in life to become a better civil servant? I mean, to become a better human being? So it requires to be to have some purpose in life because it just drives a person to do better and become better. One should have a purpose. Yes, sir. So, joining civil service, is it your purpose? So it is one of the ways. It is basically a platform, Yes, sir. right? So, what is the purpose then in your life? You are a So- philosopher as well. I mean, you are a student of philosophy. Yes, sir. So, what is the purpose in your life? So the purpose is to live a life which is not just about living a happy life, but to be compassionate, to be kind, to What be is the purpose of your life? so to interact with people and to be with people. Is that the purpose? That is a Yes, sir. that is a medium through which you may reach somewhere. What Yes, is that purpose? For which you want to become a civil servant? So I want to become a civil servant so first of all, it is my own self-interest. Again, And- my question is, what is the purpose? Okay, let's forget about it. Now, tell me one thing. Philosophy, as a student of philosophy, there are so many philosophers Yes, sir. who normally say contradictory things. Hmm. There is so much of contradictions Yes, sir. in their theories and in their thoughts. So why should one read philosophy? To become more confused, to become more having conflicts in mind. No, sir, it is not to become more confused. Mhm. It is about accommodating different views Hmm. and then develop your own self and But your then, own thinking. but then ultimately, what is the conclusion? Supposing somebody says, "Ye jagat mithya hai," Ji. and somebody says, "No, this is a real thing." Somebody says, "No, it is just an imaginary thing," and ultimately, who wins? What is the final conclusion in philosophy? So philosophy means the love for knowledge. Hmm. And basically in philosophy, we have studied that there is nothing which is absolutely right Mhm. and there is nothing which is absolutely wrong. Then what is the fun in reading philosophy? You getting confused more and more. The more you read, the more confused you become. No, sir, it's not about becoming confused. It's about the different opinions you learn to. Somebody says this world is not a real thing. Yes, sir. How did he say that? Where is the testing lab? He came up with this conclusion that this world is not a real thing. Somebody says, yes, no, it is a real thing. And for what purpose? Why that person is saying that it is a real thing? So there are different perspectives according to which they claim so. And Yeah, they claim so. Who said that a king should be a philosopher? king should be a philosopher. Philosopher king. Who gave this concept of philosopher king? I'm sorry, I'm not Okay, able my last question for you, Vidisha. Some of the philosophers have said some negative things about women. Can you name those philosophers? Sorry, sir. Some said, no, women are not as intelligent as men are. Do you have any idea?
So may I get some moments to Yes. think? No, sir, I'm not exactly able Not to recall it. No problem. विदिशा, Yes, sir. गिग इकोनॉमी की बात आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। आफ्टर कोविड ये बहुत ज़्यादा जो है एरिया वाइड हो रहा है। क्या है गिग इकोनॉमी? सर, गिग इकोनॉमी जो है इसमें बेसिकली वर्कर्स जिन्हें हम कहते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स और डे टू डे वर्किंग में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर इसका विदाउट नुकसान फॉर्मल। बताइए, इसका नुकसान क्या है? जी सर, सबसे बड़ा नुकसान है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का आउटरीच जो है वो उनके पास कम है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है गिग वर्कर्स के पास। इनके अलावा कुछ और भी जो उन्हें प्रॉपर मिलनी चाहिए चीज़ें, वर्क एटमॉस्फेयर और इन सब पे बातें क्या कम फ़ायदे होती क्या हैं। हो सकते हैं इसके? सब फायदे हैं चेंजेस में। अगर वो शिफ्ट करना चाहें अपने जॉब तो वो इजीली स्विच कर सकते हैं जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की ओर जा सकते हैं। और यस सर। ओके, एक कोई कंपनी है जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है एंड 50 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर है, उसको किस श्रेणी में रखेंगे हम? नवरत्न में रखेंगे, मिनी रत्न में रखेंगे, माइक्रो में रखेंगे, स्मॉल में रखेंगे, मीडियम में? क्या कैटेगरी होगा उस कंपनी का? 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 50 करोड़ टर्नओवर। Some micro, but I'm not able to say. ओके, एमएसएमईज के बारे में जानते हैं? जी क्या कंट्रीब्यूशन होता है उनका देश की जीडीपी में? सर, एमएसएमईज जो हैं वो आफ्टर एग्रीकल्चर अगर कहा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में सेकेंड नंबर पे आते हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी सर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। एक्सपोर्ट्स में अकाउंट करते हैं वो अराउंड 40%। एग्जैक्ट जीडीपी सर मुझे आइडिया नहीं। ओके, कोई एक ऑफिस है, उसमें पहले कुछ वर्कर थे जो फंक्शन कर रहे थे, काम कर रहे थे, जी और उन वर्कर की जगह पे कुछ कंप्यूटर्स आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी ला दी गई है जिसकी वजह से वो नहीं जानते थे इसलिए बेरोजगार हो गए हैं। ये किस टाइप की बेरोजगारी में आएगा ये? सर, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल में आएगा ये? जी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सर, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेज होता है ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ स्किल अगर किन्हीं के पास होता है और वो ये उसमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। बिहार में आप कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं? बिहार में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट आप देख पा रहे हैं? सब बिहार में जो सबसे मेन अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में बात की जाए तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसपे मोर पीपल जो हैं वो इसी लैंड पे काम कर रहे हैं और आउटपुट उनका कंपैरेटिवली कम है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम ये देख सकते हैं। इसके बाद से स्ट्रक्चरल भी एग्जिस्ट करता है बिहार में स्किल की कमी की वजह से। और कोई इसके अलावा कुछ सीजनल वगैरह अनएम्प्लॉयमेंट भी है? जी सर, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी है जो कि सर टर्म ऑफ सीजन्स, ये भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हम लेते हैं। और साइक्लिक है तो सर साइक्लिक जनरली हर जगह पे है। साइक्लिक कहाँ पाया जाता है? डेवलप्ड कौन सी नेशन में मुख्य रूप से ये बेरोजगारी देखने को मिलती है? सर, डेवलप्ड नेशंस में देखने को मिलती है क्योंकि ये वर्किंग साइक्लिक साइकिल। कहते हैं इसको हम लोग। साइक्लिक क्यों कहते हैं इसको हम लोग? सर, अकॉर्डिंग टू वर्क, जैसे ईयर होता है इकोनॉमिक ईयर, तो उसमें कुछ टाइम पे सर वर्क जो होता है वो ज़्यादा रहता है और फिर कुछ टाइम पे वर्क की सर कमी हो जाती है। तो on that बिहार में निर्धनता जात, पावर्टी ट्रैप बहुत ज़्यादा देखा जाता है। क्या है पावर्टी ट्रैप? सर, एक विशेष साइकिल है पॉवर्टी का। बिहार में अगर देखा जाए वो बिगिन होता है इलिटरेसी से। तो जब सर लिटरेसी रेट कम होती है तो स्किल जो है वो कम रहता है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं और ये साइकिल फिर इस वजह से उनका पर कैपिटा इनकम कम होता है, डिजीजेस होती है और सर ये एक ट्रैप बन जाता है। विदिशा, ये सर। मेहंदी की केमिस्ट्री बता। सर, मेहंदी जो है ये हिना प्लांट भी हम इसे कहते हैं। केमिकल नेम अगर इसका कहा जाए तो सर वो है 2-हाइड्रोक्सी-1,2-नैप्थोक्विनोन या लॉसोनिया प्लांट या लॉसोन हम इसे कह सकते हैं। ये एक ऑरेंज रेड डाई है जब इसको अप्लाई किया जाता है। गुड। और मेहंदी की फिलॉसफी बता। सर, जहाँ तक अभी मैं सोच पा रही हूँ सर, तो कलर्स, इससे हम एसोसिएट करते हैं सर कलर्स को। और कलश, सर कलर, सर आर्ट,
आर्ट नहीं सर, कलर जो ये है ना- कलर। जी कलर जो। तुझी फिलॉसफी कहाँ हुई? फिलॉसफी बताओ। जैसे केमिस्ट्री की बताई, जी वैसे इसकी फिलॉसफी बताओ। लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ फिलॉसफी है ही है। जी। क्या है? सॉरी सर। चलो केमिस्ट्री की फिलॉसफी बताओ। सर केमिस्ट्री में तो हम स्टडी करते हैं मैटर को। केमिस्ट्री की फिलॉसफी बताओ। सॉरी सर। अगर केमिस्ट्री एक प्रोडक्ट मान लो है जी तो उसका स्लोगन क्या होगा? नहीं। किसकी फिलॉसफी सबसे बेहतर लगती है? कभी फिलॉसफी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी सर पढ़ा है। कि सिर्फ कोर्स के लिए पढ़ा है? ये बता देना मुझे। सर पढ़ा है, कुछ इंटरेस्ट से भी पढ़ा है और फिर तो कोर्स के लिए पढ़ा ही है। क्या इंटरेस्ट से पढ़ा है? सर, किसकी कुछ- फिलॉसफी इंटरेस्ट से पढ़ी है? सर इंटरेस्ट से पढ़ी है, जैसे जब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था सर तो उसमें कुछ जैसे हम हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि हम एक साथ किसी भी सब्सटेंस का वेलोसिटी और मास प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, छोड़ो उसे। जी ये मुझे बताओ कि किसकी फिलॉसफी पढ़ी है? ध्यान से, इंटरेस्ट से। जी तो इंटरेस्ट से सर बुद्धिज्म भी पढ़ा है, बुद्धिज्म पढ़ा है सर। और फिलॉसफी अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो प्रैग्मेटिज्म पढ़ा है, वेस्टर्न फिलॉसफी का पोर्शन है जो कि प्राइस्ट का और जेम्स की फिलॉसफी है सर। क्या है प्रैग्मेटिज्म? तो प्रैग्मेटिज्म जो है ये प्रैक्टिकल फिलॉसफी हम इसे कहते हैं और ये यूटिलिटी पे बेस्ड है। इसका कहना है कि सिर्फ वही प्रपोजिशंस को हम ट्रू मानेंगे जिनका प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो वर्ल्ड में। इनके लिए साधन और साध्य का संदर्भ क्या है? तो साधन और साध्य, मीन्स और एम। जी सर एम्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म बेसिकली यही है कि जो चीज एट द एंड अगर यूजफुल है तो ही वो जो है वो रियल है, वो एग्जिस्ट करती है और तभी वो सही है। और इनके अलावा जो भी है जिनका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन नहीं है तो उनका एग्जिस्टेंस भी कुछ खास महत्व नहीं। ठीक है, इनका मीन्स क्या? सर नॉलेज लर्निंग। नॉलेज से। जी सॉफिस्ट से कुछ मिलते जुलते हैं क्या कहीं? सॉफिस्ट से, एपिक्यूरियन से, इनको भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी सर सॉफिस्ट पढ़ा है। सॉफिस्ट से रिलेशन है कोई इनका? सर नॉलेज और सोफिस्ट बेसिकली लॉजिक और डिबेट डेलिब्रेशंस के पे ज्यादा फोकस करते थे। इनका भी हम कह सकते हैं कि फोकस इन अ वे उस पे है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही। अच्छा ये बताइए कि आप किसी एरिया में हैं, जी एसडीएम हैं और बहुत अच्छा काम आप, कई कुछ अधिकारी हैं, कुछ आपके फ्रेंड सर्किल है वहाँ पर बन गई है जिसने बहुत बढ़िया काम किया है उस इलाके में और इसको वहाँ के लीडर भी अप्रिशिएट करते हैं। जो वहाँ का विधायक है, जो विधायक हैं, बल्कि जो महिला वहाँ की विधायक हैं वो भी उसको बहुत अप्रिशिएट करती रही और हमेशा आप लोगों से मिलती रही हैं और आप लोगों को बाकायदा आप लोगों को डायरेक्शन भी देती रही हैं। आप लोग भी उनके घर जाते रहे, ठीक है, और ये सारा कुछ बहुत अच्छा रहा है। तभी इसी ऐसे मौके में चुनाव का ऐलान हो जाता है, इलेक्शन होने वाले होते हैं वहाँ की विधानसभा के, जिस भी एरिया में आप हैं उस वहाँ के भी इलेक्शन होने वाले होते हैं। ऐसे में वो कहती हैं कि बहुत अच्छा रहा आप लोग का साथ और मैं चाहती हूँ कि अब पता नहीं अगली बार आना है कि नहीं आना है, जनता चुनेगी कि नहीं चुनेगी, हम चाहते हैं कि अब एक बार आप लोगों को थैंक यू कह दें काम के लिए। और आपको अपने यहाँ बुलाती हैं, सारे लोगों को, सारे अधिकारी आने के लिए तैयार होते आते हैं आपके पास, आप भी क्या करेंगे? सर इलेक्शंस है या फिर इलेक्शन है, मैंने बताया पहले, अब इलेक्शन होने वाले हैं। जी सर चूंकि अगर इलेक्शंस होने वाले हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर इम्प्लीमेंट हो चुका है ऑलरेडी तो मैं सर उसके हिसाब से ही काम करूंगी। मैं क्या करेंगे? सर मैं पर्सनली उनसे बात करूंगी और उनका जो भी ऑफर है उसके लिए उनको धन्यवाद दूंगी और मैं कहूंगी कि साथ साथ मेरी जो ड्यूटी है वो मेरे लिए सबसे ऊपर है, तो मैं उस बेसिस से अपना काम करना चाहूंगी। और उस वक्त पे सर मैं उनसे मिलने बाद में या फिर कभी और मिलने के लिए
सर टाइम लूँगी इलेक्शन तक नहीं मिलेंगे आप उनसे? सर। इस तरीके से सर प्राइवेट और इस तरीके की चीज़ों पे नहीं मिलूंगी, बाकी अगर कुछ वैसा चलो, रहा तो ठीक है, गुड। थैंक यू। थैंक यू सर। कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? ठीक रहा। ठीक है, यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट। आपका 14 तारीख है ना? जी हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंटली जाना आप। ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन, जितने भी क्वेश्चंस का जवाब आपने दिया है, थोड़ा सा जी है ना, वो हो गया है, हम्म, हिल गया है थोड़ा सा, है ना। जी जी जैसे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट बोला है आपने, वो नहीं है। एमएसएमई का भी आपने नहीं बता पाई, है ना। जी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का भी अलग कॉन्सेप्ट है, वो एरिया थोड़ा सा आपको ठीक ठाक देखना पड़ेगा। ठीक है, जी अदरवाइज आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। फिलॉसफी तो ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपने बताया है। फिलोसोफर किंग आप एक बार देख लेना, जी प्लेटो का है, ठीक है ना। जी और प्लेटो एंड एरिस्टोटल का ही है, जो मैंने बताया था कि वुमेन के अगेंस्ट जो है स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो सब थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, जी और सर का जो क्वेश्चन था उसमें ऑफिशियल मैटर है, ऑफिशियल कैपेसिटी में आपको कहीं पे भी जाने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन से बाद, आप किसी के साथ, किसी के पास किसी और मैटर, ऑफिशियल मैटर ले जाके बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो कुछ भी होगा ऑफिस में ही होगा, ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशंस में ही होगा। जी ठीक है, अगर कोई ऐसा कुछ होता है कई बार, जैसे प्राइवेट कोई मानो घर पे कोई शादी है किसी का, है ना, वो जी। बुलाते हैं तो उस समय जाते हैं। कोई ऐसा सोशल जो फंक्शंस है जहाँ पे सभी लोगों को इनवाइट किया गया है, जी चाहे सिविल सर्वेंट हो ना हो, उस जगह पे हम लोग जाते हैं किसी पे, अदरवाइज ऐसा नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है विदिशा, यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट, यू स्पीक वेल, यू आर कॉन्फिडेंट। विद दिस कॉन्फिडेंस आप जाना, आपका सिलेक्शन होगा। ओके ठीक है,